Namaskar everyone. Namaste. Rahulji, good to have you and with your new book, Bharati as Pradhan. I remember sharing stage with Bharati ji in Ahmedabad Literature Festival when she came with her book on, I think, one of the film stars, right? Gautam, again, good to see you. Yeah. So these days, from last some time, I'm getting this moderator role, which is a little difficult for me because I'm a TV panelist where someone is moderating me, but now I have to moderate, which is a good role, role reversal. Let me start with your titles. You both have written extensively, and especially on Prime Minister Narendra Modi, because Prime Minister Narendra Modi, to my understanding, has become more than a leader. He's become a phenomena, and the words like when BJP says Modi Sarkar, and which we heard maybe during Indira Gandhi's time, right, where the leading personality of the government was synonymous with the name of the party. Just tell me, to start with very briefly, without going into the content, the formats of a book. What are your books about? आपकी book किस बारे में है, किस तरह से है? Your book on, I'm sure you've done other works, but this current book, Rahul bhai, and then about your books on Narendra Modi. Just tell me the format, and then I'll pick up from there, Rahul bhai. So, thank you, Shantanu, Chintamani ji, and everyone here present in this book fair. And I've been going to a lot of platforms, and everybody is keen on asking that such a book on Prime Minister Narendra Modi. So it took 4 years to make such kind of a book. And especially when it comes to a leader like Narendra Modi. So idea, when Shantanu asked me about the idea of this book, so it's a very unique idea, and the idea really generated and originated in United States, just because it is a first of its kind book that in India has never seen on any of the prime ministers. We have only seen a book. Is it a coffee table book, or it's a normal book which is a textbook in which the biographies have been put in? But this is a book where we have tried to inculcate not only the photographs, but we have tried to inculcate his life journey from childhood. And this book contains exclusive interviews of his family, his friends, his teachers, and all those persons who have been dreamt for him to make as a prime minister of this country, and his childhood journey from a small town called Vadnagar. So we have been seeing a lot of things about Vadnagar, but what actually... I'll come to the details. So you're saying it's a picture book starting from his childhood till, what is the exit point of the book? The second term of the elections. The second term of the elections. Gautam, coming to you. So again, maybe I just want to know the format of a book. What does it contain, where it enters, where it exits, and then I'll start asking the questions. Yeah. Namaskar everyone. And just tell the title of the book. Great to be here. My book on Prime Minister Narendra Modi was called The Midway Battle, and publishers like eye-grabbing titles, so they gave a slug line which said Modi's roller coaster second term. अब कमाल की बात ये थी कि the book came out around the time when India, the indigenous vaccine, the COVID vaccine, हमने 1 करोड़ एक दिन में vaccines administer किए थे. So that's and the at time some point we became the fastest country in the world to administer the first set of vaccines. So when I started writing that book, my previous political book was called Rajniti. It was the biography of Sri Rajnath Singh ji. That covered the idea of Narendra Modi as the Prime Minister, that Rajnath ji was the party president और उन्होंने नाम put forward किया था, and how Narendra Modi became the choice of NDA and became the Prime Minister, and it covered the first term. ये वाला जो था, the book looks at India at 75, Modi 2.0 right at the midpoint, where we had seen a lot of changes in the world. COVID-19 had happened, and India was gaining new ground. So my book was about the point where India found itself at 75 with a leader like Narendra Modi, who was changing the narrative, and people were participating in that. So that's what the book looks at. Thank you, thank you. Now you know about the books. Rahulji traces from the childhood till you said, what is the exit point you said? The second term. The second term, right? मतलब काफी शुरुआत से, and
Gautam Bhai traces it, the 75 years of India and his prime ministership in that time, the roller coaster time, right? Rahul ji, coming back to you, आपने नरेंद्र मोदी को देखा है आज भी, हम उनका काम देखते हैं. So can you trace his working style, his leadership style to his childhood and to youth, कि वो क्या चीज़ें थी उनके बचपन में, क्या चीज़ों ने उनको इंस्टिगेट किया. हम देखते हैं कि उनकी उम्र है 70-71 साल है, लेकिन his age is never a commentary. लोग उनकी उम्र पर बात ही नहीं करते, because the way he runs, he looks more efficient than a 25-year-old, right? तो बचपन में, उनके यूथ के टाइम में, कॉलेज के टाइम में उनकी क्या ऐसी बातें थी जो उनको आज आपको दिखती हैं, that you reflect today in his working style and his leadership style? शांतनु, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को इस बात, लोग बिल्कुल इस बात को समझना या देखते ही नहीं है. आज वो उनका जो फिनोमिनल ऑरा है, आज उनकी जो लीडरशिप एक्यूमेंस एंड लीडरशिप स्किल्स हैं, लोग केवल उसके पास ही इर्द गिर्द जाते हैं. लेकिन मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी क्या थी, गुजरात का वो लड़का, कैसे चाय बेचने वाला वो लड़का, कैसे वडनगर के छोटे से इलाके से निकल के आज देश का प्रधानमंत्री बना, और उस प्रधानमंत्री ने देश को किस तरीके से बदल दिया, नहीं केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड मैप पर. तो वो बहुत अपने आप में एक जर्नी थी. जब हम वडनगर पहुँचे, वडनगर में उनकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है. Why so? लोग कहते हैं कि साहब इस वडनगर में उनको लेकर इतनी कहानियां बन गई हैं कि अब आपको सही बात क्या होगी. सबसे पहले तो हमको यही एक वो था कि क्या सही चीज़ इस किताब में डाली जाए, क्योंकि फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स इज़ वन थिंग विच यू कांट चेंज. एंड सो आपको अगर किसी के बारे में जानना है, किसी को पता करना है, तो उसके स्कूल से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती. और उसके जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि एक टीचर और एक छात्र का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को कोई नहीं छुपा पाता. सो वी ट्राइड एंड लोकेट आवर टीचर एंड हिज फ्रेंड्स. तब उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी बचपन से ही जिस तरीके से उनके अंदर जो लीडरशिप एक्यूमेंट था, अगर आज आप उनके अंदर यूनिफॉर्म आर्मी को देखते हैं, पुलिस को देखते हैं, उनके प्रति लगाव देखते हैं, तो वो आज का नहीं है, वो बचपन से है. क्योंकि वडनगर के हर दूसरे गांव में, हर दूसरे घर में एक आदमी था जो आर्मी में जाता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता था. तो उन्होंने बचपन से उस चीज़ को देखा. अगर आप बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, या आप बात करते हैं गैस सिलेंडर की, तो उन्होंने अपने घर में देखा, आसपास के घर में देखा कि कैसे उनकी मदर चूल्हे पे सो व्हाट ही इनवाइज इज नॉट दैट ही हैव स्टडीड समवेयर. उन्होंने उस हिंदुस्तान को महसूस किया, बचपन से देखा, और आज जब उनको मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान जो कि गांव और छोटे शहरों में बसता है, उसमें उसको कैसे बदलाव किया जाए. और उसके बाद उन्होंने उन सारी चेंजेस को करना किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बुक में, जो उनकी जो चाइल्डहुड जर्नी है, दैट इज़ हाउ ही पोर्ट्रे दैट इंडिया. एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने इस इंडिया का जो एक ड्रीम देखा था, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद से, उनके बचपन से ही उनके दिमाग में कुछ था कि मुझको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है. और वो उसी की शुरुआत थी, जो बीज बचपन में पड़ा, आज वो आप देख सकते हो कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं. राहुल जी, मैं आपसे कुछ किस्से भी सुनूंगा. मैं पहले गौतम जी के पास जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ. गौतम, आई ऑल्सो वांट टू टेक यू दैट देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट अटैच्ड टू प्राइम मिनिस्टर, राइट? ही बिकेम the chief, he becomes the MLA and becomes the chief minister. He becomes the member of parliament and becomes the prime minister, right? And he's the first prime minister, I understand, who's born in the independent India. So the way we see his leadership, do you want to trace it that on his lineage, on his pedigree, to how he's able to put those policies like स्वच्छता भारत? जब पहली बार स्वच्छ भारत आया था, लोगों ने मजाक बनाया कि झाड़ू लगा के टॉयलेट बना के कौन राजनीति होती है, राइट? कौन टॉयलेट बनाने की बात लाल किले की प्राचीर से करता है, राइट? सो ही हैज डन लॉट ऑफ अनकन्वेंशनल थिंग. हाउ डू यू सी दैट, वेयर इज कमिंग फ्रॉम, राइट? लॉट ऑफ दिस अनकन्वेंशनल पॉलिसीज विच आर कनेक्टेड टू पीपल बट नॉट कनेक्टेड टू द टिपिकल एनालिस्ट, राइट? कि ये इससे कैसे राजनीति होगी. सो डू यू ट्रेस बैक समहाउ लाइक हिज लिंकेजेस एंड हाउ ही केम अप इन लाइफ? So there is a great deal of insight in what Rahul mentions, and Rahul and Bharti's book traces that journey. So जो formative years में हम देखते हैं, what we see at a very very early stage is something that stays with us. So मोदी जी सही मायनों में अगर आप देखा जाए तो वो एक कर्मयोगी हैं. So he has understood things by witnessing them first hand, by experiencing them. It's like सलीम जावेद ने काला पत्थर फिल्म लिखी और वो फिल्म चली नहीं, तो बाद में जावेद साहब से किसी ने पूछा क्यों नहीं चली, तो बोला कि भाई एसी कमरे में खंडाला के होटल में बैठ के आप एक कोयले की खान की कहानी क्या ही लिखेंगे.
सो कोयले का खान अगर आपने देखा ना हो तो वो आप समझ नहीं पाओगे. जैसे राहुल ने बोला कि अगर अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा तब जाके ये सोचा कि इस देश की किसी माँ को नहीं सफ़र करना चाहिए. समथिंग दैट ही ट्रैवल्ड. अब कुछ इंसिडेंट्स हैं जैसे जो मोरबी का फ्लड था जहाँ पे उन्होंने रिलीफ वर्क किया था एज अ यंग पर्सन. दैट एंड 2001 का अर्थक्वेक इज समथिंग दैट taught him and made him understand about disaster management. He is the first chief minister and the prime minister who has put in place disaster resilient construction. आप आज कच्छ को देखें, it's completely changed. So कुछ It's चीजें a tourist place now. टूरिस्ट है. इट्स द बिगेस्ट फैब्रिक नर्व सेंटर ऑफ एशिया. बात बड़ी सिंपल है कि आप अगर कुछ चीज़ समझेंगे नहीं तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे. अब ये समझने के लिए उनकी ट्रैवल्स, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उनकी फैमिली का एक्सपीरियंस, छोटी छोटी बातें होती हैं. जैसे कि जो गुजरात में उनका जो कर्म भूमि रही है गुजरात, आप चाहे ज्योतिर्ग्राम देखिए. ही इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु डिसाइडेड कि मैं कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी अलग करूंगा, दो अलग फीडर बनाऊंगा मैं. विलेज आफ्टर विलेज सपोर्टेड हिम, विलेज आफ्टर विलेज रिफ्यूज्ड सब्सिडी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट एंड पार्टिसिपेटेड. उनका फंडा बड़ा सिंपल था. एक इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन पार्टी ऑफर्ड अ लॉट ऑफ फ्रीबीज, तो इनकम्बेंट सीएम को घेराव करके द प्रेस आस्क्ड कि क्या आप क्या फ्री चीज देंगे. उन्होंने सीधा सीधा बोला मैं कुछ फ्री नहीं दूंगा, आपको 24 hours quality चाहिए. Risky thing in current politics, right? When He there's so many freebies, how he can you not do a understands, freebie? yeah, he understands how the average person thinks, what is important for them. A lot of decisions that Modi ji has taken have been and could also be termed as political suicidal options. आप demonetization की अगर बात करें, the complete shift towards inclusion of people in financial circles, formalizing the economy, these kind of things don't happen overnight. So I think somewhere, if you talk about lineage and pedigree, that's a very misused term in politics. बहुतों की lineage होती है, सदियों से आप पब्लिक लाइफ में होते हैं और आप कुछ नहीं सीखते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से सीख के आए हैं. So I think I got your point. I think you're saying so the lived experience are very important, and I think this is a message to all the young people sitting here कि जो आपके जीवन में आपने जिया है, तो अगर आप प्रिविलेज्ड अर्बन लाइफ भी जी रहे हैं तो इंटर्नशिप करने, ऐसे ही घूमने, देखने, गांव में जाइए, इंटर्नशिप्स करिए, देखिए लंबी गांव में जीवन क्या है. केवल टीवी में सुन के और मूवीज़ देख के या पढ़ के केवल नहीं. सो आई नॉर्मली डू दिस whenever I take a book, I try to trace its origin. अगर मुझे डॉक्यूमेंट मिल भी जाता है, so I make sure कि I corroborate in the ground. आप कह रहे थे कि I missed the point. I'll coming back. Now coming back to now, right? Prime Minister Narendra Modi is one of those rare personalities in any field, politics or sports or movies, whose graph is increasing with time. नॉर्मली क्या होता है, 5 साल हो जाते हैं, एक फटीक आ जाता है कि भाई बहुत सुन ली इनके भाषण, देख लिया बहुत बार, राइट. अब 10 साल हो गए, बट हिज ग्राफ, हिज इंटरनेशनल रेटिंग्स, हिज नेशनल रेटिंग्स आर इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? व्हाट इज ही डूइंग दैट एक्स्ट्रा, दैट हिज ग्राफ, इलेक्टोरल ग्राफ, हिज पॉपुलैरिटी ग्राफ इज इंक्रीजिंग विद टाइम, हिज व्यूज, हिज सोशल मीडिया फॉलोइंग जो डाउन हो जाती है टाइम के साथ किसी भी स्टार की, व्हाई इज स्टिल मेंटेन्ड एंड स्टिल ग्रोइंग? व्हाट डू यू थिंक द रीजन सेट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट? I don't think that Mr. Modi works on the basis of political advantage. I think he works for the people, which translates into political advantage. देखिए, हमारे कंट्री में इलेक्शन जीतने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं. उतना फोकस इलेक्शन जीतने पे होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या करते हैं, अगर उस पर उतना फोकस करें तो बहुत डिफरेंस पड़ता है. आपको मैंडेट चाहिए, किस लिए चाहिए? अगर आप 1980s की बात करें तो राजीव गांधी जिस मैंडेट के साथ आए थे, 400 प्लस, इट वाज समथिंग एल्स. ही वाज अ यंग लीडर, बहुत उम्मीदें, बहुत आशाएं थी उनके साथ, और कुछ डिसीजंस उनके थे विच मेड यू क्वेश्चन द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न करना, डिसीजन को, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यंग पीपल शुड टॉक अबाउट इट, शुड गो बैक एंड इन्वेस्टिगेट दैट. तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट मेक्स नरेंद्र मोदी अ यूनिक लीडर और अ ग्लोबल स्टेट्समैन is that he never does anything in a silo. उनका जो भी डिसीजन रहा है, जो भी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम रहा है, it has had a very long reaching arch, and he has the capacity, the ability and the experience to see the end result.
A lot of us don't see the end result. A lot of us are very, very short-sighted. Modi ji looks at the end result and everything works on the basis of that. I think somewhere a country like India, more than 1 billion people, the kind of resources that we have, the kind of talent that we have, the kind of manpower, sheer entrepreneurship that we have. सवाल सिंपल ये है कि 75 साल के बाद या 65 साल के बाद, आज़ादी के बाद, क्या आप जिस हालत में हैं उस हालत में होने चाहिए थे? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है, सिंगापुर डेवस्टेटेड, जापान डेवस्टेटेड, कोरियन वॉर अर्ली 50s, नामो निशान नहीं है कोरिया का. हमसे कम रिसोर्सेज के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, those countries become something else. So what wrong did we do? Obviously it was a policy which was not working. So वो decision लेना, and I think somewhere Modi ji has realized or understood and has known for a very long time that India needs to tell the world about its potential and where it stands. And I think every decision that he took, not just as a prime minister but even as a chief minister, आप vibrant गुजरात देखिए, वाइब्रेंट गुजरात को जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके गुजरात की इकोनॉमी को जैसे ट्रांसफॉर्म किया गुजरात. Now there's a model for every state. Every state does an investment summit now. It's become a standard model in every completely. state. And you were mentioning, I'll quickly 2-3 छोटी-छोटी जो किस्से हैं which people need to understand कि analyst कितना गलत सोचते हैं. Shantanu has been the biographer of Yogi Adityanath and he has chalked Yogi ji's life and each policy. मैं जब अपनी किताब लिख रहा था मिडवे बैटल, उसमें एक मेंशन्ड एन इंसिडेंट. इलेक्शन के टाइम एक बहुत बड़े दिग्गज प्रख्यात फेमस जर्नलिस्ट दिल्ली के बिहार जाते हैं और बिहार में वो यंग लोगों से पूछते हैं भाई किसको वोट करोगे आप. तो वहाँ पे जो यंग युवा है वो कहता है मैं नरेंद्र मोदी को वोट करूँगा. ये जर्नलिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई आप नरेंद्र मोदी को किस बेसिस पे वोट करेंगे. तो उन्होंने बोला भाई मोदी जी ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सड़क कौन सी दे दी तुमको जो जिसके लिए वोट कर रहे हो, घर कौन सा दे दी, नौकरी कौन सी दे दी, क्यों वोट कर रहे हो. तो ये सेड मोदी जी ने देश का नाम विश्व भर में रोशन किया. एंड दिस जर्नलिस्ट हैड द ऑडेसिटी टू टेल द पर्सन कि भाई तुमको क्या फर्क पड़ता है फिर. तो दैट इज द इंडिया व्हिच इज चेंजिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. इसी पे शांतनु मैं अभी नाउ आई वाज अबाउट टू कम टू कुछ किस्से बताइए जो लोगों को ज्यादा रोचक लगेंगे. किस्सा बताता हूं कि जो अभी चिंतामणि ने ये बात कही कि Narendra Modi has become not a leader, but it has become heart and soul of this country, which lives in every citizen and every person of this country. और मैं आपको अभी का ही किस्सा बताता हूँ कि हम आ रहे थे तो हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा साहब आज तो किसानों का जाम लगा हुआ है, पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे. हमने कहा चलो पहुँचेंगे. तो रास्ते में वी क्रॉस एंड देयर वाज पुलिस एंड देयर वर लॉट ऑफ किसान जो आ रहे थे दिल्ली की तरफ. पुलिस ने रोक रखा था. तो आई वॉज वेरी इंक्यूजिटिव कि मैंने कहा इनसे पूछते तो हैं कि देयर इज इलेक्शन कमिंग 2 months, वो अभी किसानों का आंदोलन चलेगा, उधर लोग परेशान हैं, उधर पुलिस परेशान है, उधर किसान परेशान है, सब परेशान है. तो मैंने किसानों से रोक कर ही पूछ लिया. मैंने कहा लेट मी नो द पल्स ऑफ दीज पीपल कि 1 महीने बाद इलेक्शंस हैं, ये किसको वोट करेंगे. तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा आप तो दिल्ली जा रहे हो, सरकार के लोगों को परेशानी है ये है, तो अब आप मोदी जी को तो वोट करोगे नहीं क्योंकि सरकार ने तो आप लोगों के लिए कुछ किया नहीं. सो आउट ऑफ 20 पीपल यू डोंट बिलीव 15 लोगों ने मुझसे उस समय कहा कि साहब नरेंद्र मोदी खराब नहीं है, वो तो नीचे के लोग हैं जो उनको सही बात नहीं बताते, हम वोट तो नरेंद्र मोदी को ही करेंगे. नाउ सी दिस इज अ काइंड ऑफ अ माइंडसेट. जिस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो, जिस सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो, उसके बावजूद आप वोट नरेंद्र मोदी को ही कर रहे हो. सो एक ब्रांड, एक नाम जिसने अपने आप से लोगों के दिमाग में इस तरीके का जगह बनाना, दैट इज नॉट समथिंग कि सामने वाले ने जगह नहीं दी, उन्होंने लोगों को करके दिखाया, लोगों के उसमें. और स्पेशली विमेंस, अगर आप विमेंस की बात करें, घर की बात करें, तो स्पेशली दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी हाउस कि अगर आप आज आपने महिलाओं के सामने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे वो आपके आगे आके खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो इस देश के लिए क्या. यू गिव मी द हिस्ट्री की 75 साल जो चिंतामणि ने बात की कि 30 साल पहले के भारत में और आज के भारत में. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप डिसीजंस, तो मैं आपको एक छोटा सा डिसीजन बताता हूं जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा. अब से पहले
2014 में जब सरकार नहीं बनी थी, जब लोग अधिकारी दिल्ली में बैठते थे, प्रधानमंत्री आते थे, बाहर के डिप्लोमेट्स आते थे, डेलीगेशंस आते थे, तो हमारे यहाँ केवल सेरिमोनियल वेलकम्स होता था, जो कि केवल राष्ट्रपति भवन और हैदराबाद हाउस में होता था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, तो अधिकारियों ने बता दिया कि साहब ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे कह सकते हैं कि वो गुजरात चलें? हम फ्रांस के राष्ट्रपति को कैसे कह सकते हैं कि आप जयपुर चलें? जयपुर में चाय पिए और चाय यूपीआई से पेमेंट करें। साहब अब उससे बात हुई तो एसपीजी ने समझा दिया कि साहब सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर उनको सड़कों पर घुमाएंगे तो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज उसके लिए तैयार नहीं होंगी। लेकिन अब आपने देखा कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदीज नैरेटिव, हिज लीडरशिप, किस तरीके से उन्होंने पूरी व्यवस्था को चेंज कर दिया। अब अगर कोई बाहर का राजनयिक इस देश में आता है तो वो ये कहता है कि भारत केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी भारत है, दिल्ली के बाहर भी भारत है। So that is a landscape which Narendra Modi has changed. I think Gautam, I think that's a very important point what Rahul has raised and claps for that. कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि जैसे अब नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो वो भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। पहले हमारे यहाँ के लिए स्टैंडर्ड गिफ्ट हुआ करता था ताजमहल की एक मूर्ति, है ना, वही हुआ करता था। अभी मुझे याद है जब वो ओबामा के साथ गए थे, मतलब ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो गए थे, तो ओबामा ने एक बहुत बड़ा डिनर रखा उनके लिए, और पूरे पेपर में, भारत के पेपर में भी छपा कि ये मेन्यू है ओबामा के डिनर का, उसमें बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं, ये हैं। और पता लगा नरेंद्र मोदी उस समय 9 दुर्गे का फास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ओबामा का डिनर नहीं खाया, उन्होंने तो नींबू पानी पिया। और फिर नेक्स्ट डे यूएस के पेपरों में 9 दुर्गा के बारे में छपा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो फिर जो पहली बात उन्होंने कही, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं विच फ्लाई बिकॉज नरेंद्र मोदी इज़ देयर। मेरा खुद का मानना है कि अगर डिमोनेटाइजेशन जैसा जो एक्ट है वो किसी और ने लाया होता तो भारत की सड़कों में दंगे हो जाते। मतलब आप मेरा ही पैसा नहीं लेने दे रहे हैं मुझे, वो बैंक मैनेजर की पिटाई कर देते लोग। तो सब्सिडी छोड़ देते, लोगों से कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दो, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। लोगों ने कहा आप रेलवे की सब्सिडी छोड़ दो, तो सीनियर सिटीजन ने सब्सिडी छोड़ दी। सो व्हाट इज दिस नरेंद्र मोदी दैट लॉट ऑफ पॉलिसीज वर्क बिकॉज ऑफ हिम। किसान कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ठीक है, उनका इंटेंशन ठीक है, नीचे के लोग खराब होंगे। सो व्हाट इज नरेंद्र मोदी that his brands work even more than the party, more than the machinery of the government? So that I want you to comment on. India has for long been a place where you look up to people. मतलब आप 150-200 साल की गुलामी से निकलने के लिए तैयार हो गए क्योंकि एक आदमी ने खड़े होकर बोला कि why not? महात्मा गांधी को देखिए, सरदार पटेल को देखिए आप। So we've always been a people who want to do something right, but the trust factor जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। आप 1975 में आप इमरजेंसी देखिए, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, 65 में देन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स कि हम बैंक्स को नेशनलाइज कर देंगे क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, बैंक में खाते नहीं खुल रहे। एग्जैक्टली 10 साल बाद इमरजेंसी में आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हैं, प्रियम्बल चेंज करते हैं और उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड करते हैं। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट बेसिकली ये कहता है कि द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट विद द स्टेट, ठीक है। उसके एग्जैक्टली 10 साल बाद 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी उड़ीसा जाते हैं, वहाँ पे ड्राउट पड़ता है और बुलांगीर करके एक जगह है जहाँ पे एक लेडी प्रधानमंत्री के पास आके अपना बच्चा प्रधानमंत्री को देती है और कहती है इसे खरीद लीजिए, मेरे पास खाने के पैसे नहीं। तो आप देखिए कि 65 में आप बैंक्स को नेशनलाइज करते हैं ताकि गरीब के पास खाता खुले, 75 में आप कहते हैं कि सारे साधन जो हैं वो स्टेट के पास रहेंगे, और 85 में वो लेडी आके बोलती कि ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है। सो यू कैन सी हाउ पॉलिसी पैरालिसिस केप्ट चेंजिंग। अब वही सरकार है, वही महकमा है, वही अधिकारीगण है, बट कैसे डीबीटी के जरिए आप पैसा बचा रहे हैं, आप डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। ये करके दिखाना इज समथिंग विच हैज चेंज्ड एंड विच हैज अर्न्ड नरेंद्र मोदी दैट गुडविल ऑफ पीपल। ये आदमी जो कहता है वो कर सकता है, करता है, इसीलिए कहता है। और मैंने मतलब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिनिश माय बुक, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कट ऑफ टाइम क्या रखूं। राइटर्स जो होते हैं ना, उनको किताब लिखने में मजा आता है, एंड उसके बाद क्या होता है कि सारे पब्लिशर्स ऐसे नहीं होते, अजय इज डेफिनेटली नॉट लाइक दैट, बट मोस्ट पब्लिशर्स ऑल्सो हैव टू केटर टू अ मार्केट। तो हम किताब लिख के जिस दिन सबमिट करते हैं ना, उसके बाद से शुरू होता है कॉम्प्रोमाइज।
ठीक है, ये काट दो, ये छोड़ दो, जल्दी निकाल दो करके. बट सम पब्लिशर्स रियली सपोर्ट यू. माई पब्लिशर सपोर्टेड मी बाय सेइंग कि यू डिसाइड व्हेन टू एंड द बुक. मैंने सोचा कि आर्टिकल 370 हटती है, वो पेश होगा लोकसभा राज्यसभा में, मैं वहाँ पे बुक ख़त्म कर दूंगा. फिर मैंने सोचा कि CAA नोटिफाई होगा, मैं बुक ख़त्म कर दूंगा. ठीक है, फिर मैंने सोचा, एंड अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया. सो मैंने कहा कोविड के बारे में कुछ पता चल जाए मैं बंद कर दूंगा किताब. फिर अमेरिकन इलेक्शन के बाद ट्रंप वॉज गोइंग टू कम, मैंने कहा ठीक है ट्रंप आके चले जाएं, फिर मैं ख़त्म कर दूंगा बुक. फिर उसके बाद कोविड का जो रिस्पॉन्स शुरू होना था तब गलवान हो गया. मैंने कहा गलवान का कुछ सोल्यूशन है, मैं ख़त्म कर देता हूँ बुक. मुझे ना कट ऑफ पॉइंट नहीं मिल रहा था. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट मोदी इज. सी, मोदी जी इज़ अ बुलेट ट्रेन. वो चल रहे हैं एक स्पीड पे, वो 1.4 बिलियन पीपल को कहीं लेके जाने वाले हैं, और वो हो रहा है. एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स हैपनिंग एट अ ग्लोबल लेवल. क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी लेड फॉरेन बॉडीज अगर आप देखें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है. अब आप कमाल की बात देखो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जायंट लाइक सऊदी अरेबिया, वो सोलर अलायंस का पार्टनर बनना चाहता है. आप जितना सोलर अलायंस स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस उतनी कम होगी. लेकिन सऊदी अरेबिया, जिसका मेन स्टे फॉसिल फ्यूल है, दैट इज विलिंग टू पार्टनर विद इंडिया. एंड दैट इज द पावर ऑफ इंडिया टुडे, दैट यू हैव टू हेज योर बेट्स. आप देख लीजिए, चाइना पावरफुल है, अमेरिका पावरफुल है, देयर इज नो डिनाइंग दैट. एंड देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो विच आर कमिंग अप. बट इंडिया का जो स्टॉक है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द स्टेट्समैन कॉल्ड नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग. So I think the fact that he delivers not just at a national level or a state level, he delivers at a global level, that is what is increasing the stock. And younger generation and really जैसे जैसे ये देश बढ़ रहा है, ये देश उतना यंग हो रहा है. अगर 1.4 बिलियन पीपल में से ऑलमोस्ट 65% लोग 35 की एज से कम हैं, दैट मीन्स उन लोगों ने 25 और 35 के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ और नहीं देखा है. एवरी ईयर देयर इज गोइंग टू बी मोर नंबर ऑफ न्यू वोटर्स देन द पॉपुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज. एंड दीज पीपल डोंट हैव द पेशेंस की. बहुत फेमस नेता होते थे और जो इन्होंने कहते थे कि हम इन्होंने देखेंगे, बहुत हम मिसगवर्नेंस भी नहीं देखा है, क्योंकि दे हैव नॉट सीन मच ऑफ 2000 बिफोर Yeah, and 2003 also 14 sometimes इंडिया. I do a lot of communication. मुझे ऐसा लगता है कि good memory is such a bad thing for some nations, you know. आज हमको लगता है कि हमेशा से था सेल फोन, ये चार्ट से सस्ता 1 GB हमेशा से था. ठीक है, हमें लगता है कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बत्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वी ग्रू अप इन दिल्ली, माई फादर वॉज इन द आर्मी, एंड मैंने इंसर्जेंसी बड़े पास से देखी है, मैंने प्रॉब्लम्स बड़े पास से देखे, और मैंने ट्रेजिडीज़ बहुत पास से देखी है. मतलब सरोजनी नगर का ब्लास्ट हो या मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हो, आप ये वो रास्ते जहाँ पे आप घूमते थे. और आज बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड दैट इज द leadership behind it which has made you feel this way. I think that makes someone like Narendra Modi's work even more difficult. That you can't rest on your laurels कि आज ये काम कर दिया बस हो गया. Because today's voter is a very greedy voter. उसे कुछ और चाहिए. And every week Narendra Modi's give you something that, oh my God, ये भी हो गया country में. In fact, we the analysts can't keep track of things the way the pace it's going on. And rightfully so. Citizens, people who are born to a certain land, they have. नहीं, हम लोग थोड़े रिलेक्टेड हो चुके थे. हमारा शायद नेता से या पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्टेशन भी बहुत लो लेवल का था कि वो इवेंट पे टाइम पे आ गया, तो हमें तो बहुत बड़ी बात है टाइम पे आ गया. शांतनु, आपने बात करी एक्सपेक्टेशंस की, तो मुझे याद है कि अभी 3 महीने 1 महीने भी नहीं होंगे जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स आने वाले थे, तो उस समय लोगों के दिमाग में था कुछ बदलेगा, कुछ चेंज होगा. सो आई वॉज इन पार्लियामेंट एंड मैं प्रधानमंत्री को वहाँ से आते हुए देख रहा था, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बट उनके चेहरे पे शिकस्त नहीं थी. ही वॉज कॉन्फिडेंट टू द कोर कि कुछ भी नहीं बदलेगा. प्रॉबली उसके रीजंस कुछ भी हों, लेकिन और दूसरी चीज़ जो है, जो अभी आपने पॉलिटिशियंस और नेताओं की बात करी, तो वो उनको पता है कि आज की जो जनरेशन है, दे वॉन्ट चेंज, दे वॉन्ट वर्क. अगर डिस्पाइट बीइंग अदर गवर्नमेंट्स सब ये कहते हैं कि साहब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडर्स ने, जो कि जमीन से जुड़ा लीडर था, 4 बार का मुख्यमंत्री था, उसको हटाना कितना मुश्किल काम होगा. राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना, इफ इट वुड हैव बीन ओल्ड बीजेपी, तो इन लीडर्स को आप हटा नहीं सकते थे. लेकिन ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है कि उन्होंने उस चेंज को ये सोचते हुए भी कि ये लीडर्स क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि आज का जो भारत है, आज का जो इंडिया है,
वो चेंज चाहता है, वो यंगर जनरेशन चाहता है, और वो लीडर्स चाहता है जो काम करे, काम करवा सके. दैट इज द रीजन कि उन्होंने उस चेंज को इतनी आसानी से करा लिया. वरना आज भी आई हर्ड योर डिस्कशंस इन न्यूज चैनल्स, लोग एक उसके थे कि अगर उनको बदल देंगे तो लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे, अगर उसको हटा देंगे तो विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे, इतनी सीट्स नहीं आएंगी, इतनी सीट्स नहीं आएंगी. आज वही मीडिया है, वही चैनल्स हैं, अब कह रहे हैं सरकार तो बन जाएगी, 400 के आसपास कितनी आएगी ये देखने वाली बात है. दिस इज द नैरेटिव. I think what Rahul said is very interesting, that how lot of the paradigms on TV also shifted. गौतम, मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले जब मोदी जी आए थे, एंटी इनकम्बेंसी टीवी में बहुत आसान वर्ड था. किसी भी सरकार पलटी है ना, सब एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड से बोल दो भाई एंटी इनकम्बेंसी थी. पहली बार हमने पिछले 4-5 साल से प्रो इनकम्बेंसी वर्ड करना शुरू करा कि भाई सरकारें दोबारा भी आ सकती हैं, राइट. इफ यू डिलीवर गुड वर्क. पहले लगता था कि ऑल्टरनेट ही आएंगे, ऐसा ही होता है, दैट्स द वे इट इज, और उसको आप जागनाइज कर दो तो यू विल साउंड लाइक अ गुड एनालिस्ट, राइट. सो मैं इसी पे मीडिया पे आना चाहूँगा. एक ये नैरेटिव चलता है कि बहुत सारे इंडेक्सेस विदेश के आ गए, इंडिया में तो डेमोक्रेसी नहीं बची है, नाउ दिस टर्म कॉल्ड गोदी मीडिया, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई. देखिए, मैंने करीब गौतम 4-5 हज़ार टीवी डिबेट्स करी हैं लाइफ में, और हर डिबेट में मैं अकेला नहीं बैठा हूँ. अगर मैं प्रो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो 5 लोग एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हैं. ऐसी कौन सी खबर है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आपने ना देखी हो? आपको पता है उसके बारे में? अगर तो वाई दिस नैरेटिव इज स्टिल ऑन, राइट, कि मोदी सरकार ने मीडिया की आवाज़ दबा दी, दिस गोदी मीडिया. सो व्हाट्स योर कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ मीडिया? मुझे तो और फार मोर, मैं कुछ खबर लिखता हूँ, शाम को 4 लड़के उस पर कमेंट कर देते हैं. इट्स फार मोर डेमोक्रेटिक, बट इट्स मेड आउट टू बी एज इफ द करंट गवर्नमेंट हैज मफल्ड द मीडिया. आई थिंक योर कमेंट्स ऑन दैट. Sometimes, people take contrarian बनने के लिए you end up taking the wrong argument because दूसरे बंदे ने ना right argument आपसे पहले ले लिया. तो दुकान भी चलानी होती है. People have to, and there are people, I mean, I'm not saying that there are people who don't think that we should get somebody else. This is a democracy. हर 5 साल में election होते हैं. Yeah, BJP is not getting 100% of the votes, right? There's someone else is also getting votes. But the system is as such that the first past the post gets it. I think somewhere media is doing a job where it has to cater to a lot of voices. अब देखिए, ऐसा है कि अगर हर कोई प्रो गवर्नमेंट न्यूज़ देगा तो एक्चुअली कितना इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिलेगा आपको, वो अलग बात है. द काइंड ऑफ ग्राउंड वर्क दैट दिस गवर्नमेंट, दैट नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट हैज कवर्ड, phenomenal, and I still think that it is underreported. It is underreported from a factual point of view. I think somewhere media has become entertaining, honestly speaking. हमारे इसमें होता था जब हम कॉमर्स में पढ़ते थे, जब तक स्कूल में आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको कॉमर्स का टीचर जो कहता है वो कहता है कि अकाउंट्स मैथमेटिक्स की तरह है, आंसर खराब नहीं, गलत नहीं हो सकता, आंसर राइट ही आएगा. जब आप कॉलेज में पहुंचते हो ना, तब आंसर जब राइट नहीं आ रहा होता तो वही अकाउंट्स टीचर बोलता है कि एक सस्पेंस अकाउंट बना दो, उसमें पैसे डाल दो और फिगर आपकी बैलेंस हो जाएगी. तो आई थिंक मीडिया हैज़ बिकम वेरी लेजी, वेरी कन्वीनियंट. ऑल्सो व्हाट वर यू ग्रोइंग अप ऑन? आप देखिए, आप जो कंज्यूम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा फिल्मों का भी बैकग्राउंड है, आई हैव रिटन अ बायोग्राफी ऑफ राजेश खन्ना, आई हैव डन टीवी शोज. सो अब जैसे फिल्मों का हम एग्जाम्पल देते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट फिल्म मेकर्स लाइक रोहित शेट्टी और फराह खान, फराह इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लोज फ्रेंड, जो अपनी टाइप की फिल्में बनाते हैं, ये खराब फिल्में नहीं है. बट फराह और रोहित ग्रू अप वॉचिंग मनमोहन देसाई. सो उनका ग्राफ, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका सेफ स्पेस उतना ही है. मनमोहन देसाई जब बड़े हो रहे थे तो वो चाहे ना चाहे वो बिमल रॉय को भी देख रहे थे. सो समवेयर उनका ग्राफ बड़ा है. आई थिंक मीडिया इज नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ डिलीवरेबल. मीडिया इज ऑल्सो बीन वेरी बायस्ड. एंड देखिए, एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही पार्टी है जिसने ऑफिशियली इमरजेंसी इम्पोज की. ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. आप कुछ भी बोलिए कि इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर. Having said that notwithstanding, she is the only prime minister who imposed emergency, who imprisoned the entire opposition, who changed the constitution on whim and fancy. क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उनके खिलाफ रूल किया था. अब वो लोग अगर आज घूम के आपको ये डराएं, ये बोलें कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मोदी डिक्टेटर है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मोदी जी ये कर देंगे,
भाई कॉन्स्टिट्यूशनली जनता पार्टी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप नहीं कर सकते ऐसे इम्पोज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब दुनिया में इम्पॉसिबल चीजें नहीं होती हैं, बट फैक्ट है कि अमेरिका डज नॉट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बिकॉज दे आर द ओनली कंट्री व्हिच हैव ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब। Certain facts don't change. I think somewhere media also needs to change the way it looks. सुपरस्टार होते हैं, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार नहीं है आज की डेट में। रणवीर सिंह बहुत बड़े स्टार हैं, बट उस लेवल के नहीं है क्योंकि पैरामीटर आपका चेंज हो गया। अगर आप मोदी जी को देख रहे हैं, जैसे कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आर वेरी हाई एंड द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड एंड राइटफुली सो was that कि by what parameter are you judging unemployment? अगर आप ये देख रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड खुलने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप का नंबर हाई हुआ है वो फंडिंग नहीं करेंगे। सो यू हैव टू चेंज योर पैरामीटर एंड आई थिंक समवेयर मीडिया इज वेरी लेजी। उनको आदत नहीं है रिसर्च करने की। आप जानते हैं, यू बीन एक्सपीरियंस की I've seen a lot of people who have never been to Lucknow and become an expert on UP politics. They have never traveled to Noida also from Delhi. Delhi में बैठे बैठे उन्होंने UP पे पूरी चिट्ठी लिख दी है। I think the last set of questions. What are the main challenge that you faced writing this problem? I've seen multiple pictures. From where you procured so many high quality pictures? So, Shantanu Chintamani ji said, that is the major thing Ajay always asked me, कि इसका end कब होगा? And then your copyright of every picture that you produce. end कब Sorry, होगा? Ajay. Being a publisher, he was after my life कि book तो हमने शुरू कर दी, ये ख़त्म कब करेंगे? So मैं कोविड आ गया, फिर जैसे आपने बताया फर्स्ट वी डिसाइडेड कि इसको 6 महीने पहले ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कोविड आ गया, देन अजय आस्क्ड मी कि थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद फिर नवंबर में 2 इंसिडेंट्स हुए, तो अजय सेड कि आप इनको तो रख लेते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर कि बुक का काउंट 900 पेजेस पहुंच गया। एंड जस्ट बिकॉज आई हैव बीन हैंडलिंग द मीडिया फॉर द गवर्नमेंट, सोशल मीडिया फॉर द गवर्नमेंट, एंड वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ photographic things for the government. So that was initially the idea, and that is the reason Ajay wanted कि such kind of book should be there. Just because I always remember the prime minister once told कि इतिहास केवल 2 लोगों को याद रखता है, एक वो जिसने इतिहास लिखा और एक वो जिस पे इतिहास लिखा गया। Lovely, rightly said. इसीलिए एंड दैट इज़ द थिंग, क्योंकि इतिहास किताबों में ही लिखा जाएगा और प्रधानमंत्री को जब आज से 50 साल बाद और 40 साल बाद पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, तो आई एम श्योर दीज बुक्स गोना बी द रिसर्च थिंग। चिंतामणि ने जो बुक लिखी है और आपने जो बुक लिखी है, उसी से इस नए भारत की जो नींव इन प्रधानमंत्री ने डाली है, इन्हीं किताबों के माध्यम से आने वाली जनरेशन उसको याद रखेगी, उसको पढ़ेगी, और वो एक रिसर्च की जाएगी कि जिस तरीके से आपने कहा। एंड आई ऑलवेज से, जब जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, जहाँ पर भी मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज़ नॉट अ लीडर, वो अब इस भारत की कहानी है, वो इस भारत के हर उस गांव की, उस शहर की, उस घर की कहानी है कि जो अब नरेंद्र मोदी के नाम की बिगा अधूरी है। अगर बच्चा भी है तो वो भी जान रहा है कि नरेंद्र मोदी कौन है। मुझे आज भी मीडिया के इंसिडेंट याद हैं कि अगर आप आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले किसी और लीडर की फोटो दिखाओ तो वो पहचानते नहीं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो कहते थे कि मुझे इस पे एक थोड़ा सा जोक याद आ रहा है। जोक क्या, एक इंसिडेंट है, बरखा दत्त का एक चैनल है मोजो टीवी, उस पर वो अभी शायद नीरजा चौधरी के साथ एक इंटरव्यू कर रही थी। नीरजा चौधरी एक पुरानी पत्रकार हैं और प्रियंका गांधी पे बात हो रही थी। मैं इसको उतना पॉलिटिकल बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने इंसिडेंस दिया तो उन्होंने बताया कि वो एक पान की दुकान पे गई बरखा दत्त, और पान की दुकान वाले को लगा कि बरखा दत्त प्रियंका गांधी हैं, क्योंकि उसने जीवन में, और ये अमेठी रायबरेली के एरिया में हो रहा है, उसने जीवन में प्रियंका गांधी को देखा है तो उसने कहा शॉर्टकट शॉर्ट बाल है, शायद ये होगी। हम से दैट्स द डिस्कनेक्ट कैन हैपन वर्सेस यू आर सेइंग कि यहाँ पे बच्चे को पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है। सो दैट इज द चेंज व्हाट दिस कंट्री हैज विटनेस्ड। अगर आप इस पूरी आइडियोलॉजी को ठीक से रिसर्च करो, इसको ठीक से पढ़ो, सो दैट इज व्हाट ही हैज इन्विजन्ड 10 years बैक कि अगर आज से इस चीज़ पर काम करना शुरू किया जाएगा, नरेंद्र मोदी को इन्वाइव करना जाएगा, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या वो किसी तरीके का टॉक हो, तब आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद इस देश के कोने कोने तक नरेंद्र मोदी को लोगों के दिलों तक, लोगों के दिमाग तक पहुंचा पाओगे, जो कि अब सॉरी टू से अब से पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्योंकि हमारे देश में जो
अपीसमेंट की पॉलिसी होती थी कि मुख्यमंत्री को खुश करना है, मंत्री को खुश करना है, या उसी किसी भी मंत्री के विभाग से संबंधित काम करने हैं, वो अब होता नहीं है. अब देयर इज वन लीडर, अंडर हिज लीडरशिप द कंट्री इज परफॉर्मिंग, द कैबिनेट इज परफॉर्मिंग. और अब लोगों को पता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत की जो सरकार है वो उनकी लीडरशिप में काम कर रही है. सो दैट इज व्हाट दिस मैन हैज इन्वाइव्ड. एंड मैं जितना मैंने उनको देखा है, मैं बोल सकता हूँ कि वो बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में भी वो आदमी हिचकता नहीं है. सो दैट इज व्हाट दिस कंट्री, द पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट, जो लास्ट 20 ईयर्स में. और मैं शांतनु आपसे ही छोटा सा सवाल, इस जितने लोग बैठे हैं उनसे छोटा सा सवाल करके जाता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया. हाँ, छोटा सा सवाल ये कि अगर आप आज नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दोगे तो आप किसको वोट दोगे? कैन यू थिंक ऑफ वन नेम अपार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी इन दिस कंट्री, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और जिसको आप प्रधानमंत्री बना सकते हो? किसी को वो नाम नहीं मिलेगा. दैट इज द रीजन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि अगले 10 साल, अगले 15 साल और 2040 तक ये सरकार इस देश को दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रही है. Do we have times for some question answers? Do we have time for 2-3 questions, right? Anyone, before I ask my set of last question, anyone wants to ask anyone, to Gautam, to Rahul ji, on your books, on writing of books, on any other topic that comes to mind? Anyone? Okay. Education के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? Anyone you want to comment? एजुकेशन का डेफिनेशन चेंज किया, यही बहुत बड़ी बात है. जो नई पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी जो वोकेशन पे बहुत फोकस करती है. इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सिनारियो जहाँ पे एजुकेशन काम की हो. लर्निंग और एजुकेशन के बीच का जो डिफरेंस है, आई थिंक वो ब्रिज किया है इन द लास्ट 10 years डेफिनेटली. एंटरप्रेन्योरशिप मेरे हिसाब से जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, दैट इन इटसेल्फ, देखिए अगर 12 साल की एजुकेशन के बाद हम बच्चों को ये बता नहीं पाए, और मैं भी इसका विक्टिम रहा हूँ, कि नंबर्स एंड मार्क्स डोंट मीन अ लॉट. मैंने कॉमर्स किया है, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ फार ऑफ फ्रॉम कॉमर्स. वो एक कॉन्फिडेंस, आप में से किसी ने पक्का परीक्षा पे चर्चा टीवी पे तो देखी होगी. कभी अगर मौका मिले आप लोगों को और आप इन पर्सन देख पाएँ, सो प्लीज़ गो एंड सी द प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्ट विद चिल्ड्रन. कहीं पे ये कॉन्फिडेंस देना कि एग्जाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक वो बहुत बड़ी चेंज है. बाकी डॉक्यूमेंट थिंग्स हैव बीन वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड. Maybe I want to mention some numbers. हमारे एम्स जो हैं वो नंबर ट्रिपल हो गए हैं, IITs डबल हो गए हैं, IIMs डबल हो गए हैं. NEP जो गौतम ने पॉलिसी की 2020, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव वर्ल्ड क्लास पॉलिसी, जिसमें आप पहले साल से भी एग्जिट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन से सर्टिफिकेट मिलेगा. दूसरे साल से एग्जिट कर सकते हैं, डिप्लोमा मिलेगा. तीसरे साल से एग्जिट कर सकते हैं, डिग्री मिलेगी. एंड चौथे साल से एग्जिट करते हैं, ऑनर्स के साथ डिग्री मिलेगी, विच इज़ पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपकी डिग्री की रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है, बट दैट विल टेक टाइम वो अपने सिस्टम में इनग्रेड होने में. राहुल, यू वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन एजुकेशन क्विकली? ओके, एनी अदर क्वेश्चन क्विकली? नहीं, और क्वेश्चन ले लेते हैं. हाँ जी, जोर से बोल दीजिए, थोड़ा खड़े होके. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अटल जी और नरेंद्र मोदी में समानता क्या है और अंतर क्या है? यू वांट टू टेक? अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए दोनों का विजन बहुत ही क्लियर रहा है. एंड आई थिंक समवेयर कोलिशन पॉलिटिक्स और उस समय की जो राजनीति थी उसने अटल जी के हाथ बांध के रखे थे. कुछ चीज़ें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसकी नींव रखी, जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन जिसका फ़ायदा आज हम देख रहे हैं, रोड नेटवर्क, ग्रामीण सड़क योजना जो थी, एंड एजुकेशन की बात करें तो वाजपेयी जी रियली हैड अ विजन. न्यूक्लियर टेस्ट करना, कहीं ना कहीं डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद नॉट टू बाउ डाउन टू द वर्ल्ड प्रेशर, वो जानते हुए वो डिसीजन लेना. आई थिंक दैट मेड वाजपेयी जी यूनिक. एंड द फैक्ट दैट नरेंद्र मोदी सेट्स द नैरेटिव फॉर द वर्ल्ड. अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ओपेक है, अगर वो ये बोलती है कि हमें अपना प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करने से पहले इंडिया के बारे में सोचना है, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं वो सोचना है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है. एक और चीज़ मैं बोलूँगा वेरी क्विकली,
try and read about India and try and read about Narendra Modi in the foreign press. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन प्रेस रिपोर्ट नहीं करता है. एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अब्राहम अकॉर्ड्स जो हुए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में, जहाँ पे अरब वर्ल्ड एंड इजराइल फाइनली ब्रोकर्ड अ पीस डील, वो बेशक अब्राहम अकॉर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हुए हों, लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन रखने का था, एक एयर इंडिया की फ्लाइट बिकेम द फर्स्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड जो दिल्ली से इजराइल गई ओवर द अरेबियन एयर स्पेस. और दोनों कंट्रीज के, इजराइल के न्यूज़पेपर्स में और अरब वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में प्लस लैटिन अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में इसको बहुत हाईलाइट से बताया गया इस बात को. फॉरेन की कंट्रीज में दे डोंट हैव द प्रेजुडिस कि मैं इस साइड रहूं या मैं उस साइड रहूं, मैं लिबरल हूं कि मैं राइट विंग हूं, मैं बीजेपी हूं कि मैं एंटी बीजेपी हूं, मैं डू आई लाइक मोदी या हेट मोदी, एम आई मोदी भक्त, ये सब प्रेशर नहीं है उनके पास. दे विल रिपोर्ट थिंग्स एज दे आर. ऑफ कोर्स देयर इज एन एडिटोरियल पॉलिसी, उस पर वो कमेंट भी करेंगे, बीबीसी कमेंट करती है, वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है, बट फैक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए इंटरेस्टिंग माध्यम है. आप फॉरेन प्रेस पढ़िए. I think that brings to the end of the session. I think the best respect to any author is to buy their books, right? And we authors should shamelessly market our books. So do buy Rahul's book. I'm sure your books be available in whichever stall. My books are available in Penguin, Garuda, Visual Publication. Hopefully I'll publish with Om sometime soon. Yeah. Thank you all of you. Thank you. धन्यवाद. हम लोग यहाँ पे हैं सब. बात करेंगे आप लोगों से. Thank you. I think हम लोगों को कुछ गिफ्ट मिलने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे. Thank you everyone for joining us for the session, and as sir rightly said, you can get a copy of Turbulence and Triumph signed by Mr. Rahul Agarwal right at the last chair or at our stall B01 in hall number 5. And now to thank all our speakers, we would like to give a small token of appreciation to all of you.